جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے. ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ. لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے، کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے، مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو، پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا. انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں، نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے،
लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी है, और हमजाद भी है, और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है, क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझे कि दो इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी। तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना, उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के मोहल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए, पहले पहली और फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं रहता, अचानक 4 बीवी लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी, तो इस तरह करके चलाना। ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है वो। जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है, तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज दफा अपनी नजर भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे, अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है। किसकी देन है ये? अल्लाह की देन है। तो इन चीजों के एहतमाम से नजर का चांस कम हो जाता है। बाकी आमिलों के पास ना नजर का कोई इलाज है, सिवाय मिसमरिज्म के। दिमाग को कंट्रोल करके कुछ उल्टी सीधी चीजें आपकी खोपड़ी में डाल देते हैं, तो उससे आप समझते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक नहीं होते। आप मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हो, मुतमईन हो जाते हो, और इनका अपना दिमाग भी खराब होता है, आपका भी दिमाग खराब करते हैं। समझते हो? अच्छा, मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, लोग कहते हैं ये 2 नंबर आमिलों के खिलाफ है। बिल्कुल गलत बात, मैं 1 नंबर आमिलों के खिलाफ हूं, ये जहन में रखो। 2 नंबर को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। मैं उन आमिलों के खिलाफ हूं जिनको उलमा बुजुर्गान दीन समझते हैं कि बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है ये, मैं उनको 2 नंबर समझता हूं। ये कख भी नहीं कर सकते। समझते हो?
कि कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कराची में हो, चाहे पंजाब में हो, सब एक जैसे हैं ये। तो इसलिए अपने आप को बचाओ इन फजूल लोगों से। अच्छा भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात से मुतालिक अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? नबी पर जादू हुआ था, बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन हुआ क्यों था? आप कहेंगे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जादू इतनी आसान नहीं है, हजारों में किसी एक पे, तो पैगंबर पे हो गया। देखो, कुछ चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हुई हैं जिनमें कोई हिकमत थी। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, जादूगर जादूगर। अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया ताकि यहूदियों को इल्जाम लगाने का मौका ना मिले। जादूगरों पे जादू का असर नहीं होता, तो थोड़ा सा असर अल्लाह ने होने दे दिया। इतना असर कि आप कभी कभार भूलने लगे कुछ चीजें, कुछ काम किया होता आपको याद ना होता। इससे ज्यादा असर नहीं हुआ आपके ऊपर। और ये असर इसलिए अल्लाह ने डाला ताकि लोगों को यकीन आ जाए आप बशरियत में कामिल हैं और आप जादूगर नहीं है। असल मकसद ये इल्जाम की नफी थी। अगर ये इतना आसान होता तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया मेरे भाई? हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया? हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया? सैयदना अली पे क्यों नहीं हो गया? ये तो एक तमाशा बना लेते लोग। फिरौन के मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए हैं। आप लोग को आवाज सही आ रही है? गूंज तो नहीं रही है? बस मुझे तो गूंज रही है बस। भाई, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए। कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने दिमाग को ऐसा कैप्चर किया है कि देखने में ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं। हकीकत में वो लाठियां सांप नहीं बनी थी। दिमाग में कुछ उन्होंने ऐसा किया है ना कि युखय्यलु, ख्याल पैदा हुआ कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है? सांप। देखो, अंबिया के दिमाग को ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने यहां होने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है? सांप है। इसमें हिकमत थी ना, ताकि मुकाबला तो हो। अब सवाल पैदा होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला जीत गए, फिरौन ने धमकी दी जादूगरों के कि तुम्हारे हाथ पांव काट के मैं कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर वही रस्सियां दोबारा फिरौन की तरफ फेंक देते कि तू कत्ल करके दिखा हमें। क्या ख्याल है भाई? या फिरौन पे जादू कर देते? हुआ जादू फिरौन पे? बोलते क्यों नहीं? मुझे लग रहा है आप लोग पे हो गया। नहीं हुआ ना फिरौन पे जादू। भाई, जादूगर हजारों जादूगर थे, सैकड़ों तो थे ही। उन्होंने सोचा कि यार तू हमें धमकी दे रहा है, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा, मंत्र छू। यूं करते फिरौन टेढ़ा हो जाता। फिरौन की सास को कुछ चीजें सिखा देते। क्या ख्याल है? जिठानी फिरौन की जोजा जो थी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, उनको कह देते कि तुम अपनी सास से कुछ करवा दो, या जिठानी से, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं होता भाई। फिरौन ने धमकी दी और हाथ पांव काट के उन सबको शहीद कर दिया। कुछ भी नहीं हो सका। ऐसा नहीं होता। जादूगरों को एक माहौल चाहिए, उसी में वो सब कुछ करते हैं। तो ये हमसे ज्यादा कमजोर होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कम अगर डरो ना, तो आमिलों से और जादूगरों से सबसे कम डरा करो। जैसे कि पुलिस वाले इनसे बिल्कुल ही नहीं डरते। अक्सर आपने देखा होगा, रेड पड़ती है ना पुलिस वालों की आमिलों के पास, तो पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस में जो गुटखा खाने वाला है ना, वो उठा के ले आता है आमिल को, थाने में बंद कर देता है। आमिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काम की नहीं है। सोचो, जो आमिल एक गुटखा खाने वाले पुलिस वाले के सामने कुछ नहीं कर सकता, वो उस आमिल की पूरी टीम को उठा के लॉकअप कर देते हैं ये लोग। वो संदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? वो संदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता? तो ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ कौम रूहानी आमिल होते हैं, लेकिन दिमाग का खेल है सारा। तो लोग इनसे डर रहे होते हैं। नहीं डरो तो आप ताकतवर हो, समझते हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है ग्लूकोज की 3 बोतलें चढ़ा ली मैंने, और आमिल के खिलाफ बोलता हूं इतनी, क्योंकि आमिल मेरे खिलाफ बहुत सरगर्म हो गए आजकल। अभी उलमा का एक वफद गया किसी आमिल के पास, वो वफद पहले मेरे पास आया, गपशप हुई, बैठे, मैंने उनको रात को खाने की दावत दी। उन्होंने किसी से मिलने जा रहे थे, मुझे नहीं पता किसी आमिल के पास गए। उस आमिल ने मेरे खिलाफ इतना बोला कि उन्होंने मेरी दावत ही कैंसिल कर दी कि यार ये मुफ्ती साहब तो 2 नंबर है माज़अल्लाह। उन्होंने अपनी तरफ से उस आमिल की बातों में आके, तो जब उन्होंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा है, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये आमिल रखे हुए हैं, तुम जैसे फजूल लोगों से अल्लाह ने मुझे निजात दे दी, ताकि मेरा खाना तमीज वाले अक्लमंद लोग खाएं। जो आमिलों से मुतासिर हो तो उस बेचारे का मेंटल लेवल क्या होगा आप सोचो। मैंने कहा हमें ऐसे मौलवियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनका मेंटल लेवल ये है कि चुड़ैल भूत भगाने वालों से मुतासिर होके आते हैं। ये तो मेंटल लेवल है आपका। दलाइल से के बजाय इन लोगों से मुतासिर होते हैं। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब हम 6 भाई हैं, हमारा एक प्लॉट है 5 मरले का, वो हमारी वालदा के नाम है जो कि इंतकाल कर चुकी हैं। इस प्लॉट में बहन भाइयों के दरमियान हिस्सा क्या होगा? वालदा का प्लॉट था तो 6 बहन भाई हैं,
अबे बहनें कितनी, अच्छा 6 बहन भाई हैं तो मुझे क्या पता भाई कितने हैं, बहनें कितनी है भाई। भाई का हिस्सा दुगना होता है ना बहन की निस्बत। तो पहले ये बताओगे तो कितने भाई कितनी बहनें तो मैं बता सकता हूं। दूसरा, वालिदा का इंतकाल हो गया तो अगर वालिद का पहले इंतकाल हुआ था तो वालिद का हिस्सा नहीं है उसमें। और फिर वालिदा के वालिदैन हयात हैं या नहीं है, ये सारी डिटेल पता चलेगी तो बता सकता हूं। तो उस्ताद जी, अगर बंदे को पता हो कि मैं अपने बच्चे को छोटे बच्चे को किसी खातून का दूध पिला रहा हूं तो क्या सूरत में मार्केट से खरीद के पिलाना जायज है? भाई इसको प्रोमोट ही नहीं करना चाहिए मार्केट से दूध खरीदने को। इसमें किस कदर शक पैदा हो जाएगा, हमें क्या पता कि डब्बे में किसका दूध है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं इसके, इस चीज को प्रोमोट ना करें। ये इंसान है, कोई गाय भैंसे नहीं है कि उनका दूध इस तरह से डब्बों में बिकना शुरू हो जाए। और कुछ चीजें हमारे यहाँ पहले से फर्ज कर ली जाती हैं। अब ये फर्ज कर लिया गया कि बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, खुराक के जखीरे खत्म हो रहे हैं, इसलिए पैकिंग का दूध हमें चाहिए, माओ की पैकिंग का दूध, माओ के ये दूध की पैकिंग, सॉरी ऐसा नहीं माँ पैक करके उसका दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो कुछ चीजें फर्ज कर ली गई हैं, तो वो खामखा में फर्ज कर ली गई हैं। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दूं। कराची में समंदर में इतनी फिश पैदा होती है कि हम जब भी फिशरी गए हैं या मछली खाने का हमने इरादा किया है, इंतहाई सस्ते दामों बहुत बड़ी बड़ी मछली के लॉट हम उठा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना, सरमायादार लोग, उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट और ज्यादा होना चाहिए, तो मछलियों की फार्मिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे सामने ये काम हुआ है। मछलियों का कहत कभी भी नहीं पड़ा कराची में, मछली और बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन ताजिर ने क्या किया कि और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे, तो फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब फार्मिंग हो रही है तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ रहे हैं? फार्मिंग पर। वो जो मछेरा जाता था समंदर में इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के, उसने कहा अबे इधर से खरीद के इधर बेचो, बहुत सस्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ताजिर लोग इस फार्मी मछली पे आ जाएंगे तो समंदर में मछली निकालना कम, फिर लोगों के जहन पे एक भूत सवार हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि यार आबादी असल में इतनी बढ़ गई है कि अब समंदर की मच्छी हमारे लिए काफी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले खुद ब खुद फर्ज करते हैं, उन फर्जी चीजों की बेस पे हम काम शुरू करते हैं, फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यार अगर ये फार्मी मछली बंद हो जाए तो इतनी आबादी को कौन मछली खिलाएगा, हालांकि अब तक समंदर खिला रहा था। सही है ना? तो ये सरमायादार की हवस होती है। तो इसी तरह अब तक जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वाफर मिकदार में माओ का दूध उनको मिल रहा है, जिनको मां का नहीं मिलता बाजार में डब्बे का मिल जाता है। ऐसा कोई हमारे मुल्क में कहत नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज को फर्जी तौर पे करके वो डब्बों का माओ का दूध भी जो है ना वो पैक होना चाहिए, ये होना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि लोग कहेंगे यार देखो अगर इतनी आबादी है, अगर ये ना होता। भाई आबादी जो होती है ना, बच्चे एकदम आसमान से थोड़ी गिरते हैं, मां जनती है ना।